20 apps names you will come through. Okay? Yes, sir. Only list the names. No functions, no need to explain. Only 9 names. 3D Beer, Notebook LLM, you might know. In short, Tech Math, VN, H5P, Pinterest, Anatomy 3D, AI PPT, धीरे धीरे बोलिए Goggle and Lumi. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 3D Beer, Notebook LLM, InShots, TechMath, VN, H5P, Pinterest, Anatomy 3D, AI PPT, Goggle and Lumi. Okay. Next second group. Lumi का ऐप नहीं होगा. मोबाइल ऐप नहीं है. ठीक है. Let's listen. Yeah, please start. Stop motion, art, Google Art and Culture, Sky Video, चलो. Instagram, Kind Master, Stellium, Star Map, Duolink, और Canva, Chatboots, Kahoot, Digi Yatra, and last but not least, TrueMates. मैं सीखना पड़ता है डिजी यात्रा कैसा एजुकेशनल का यूज कर सकते हैं. राइट? या. रूल नंबर 3 हमने ऐप सिर्फ ले लिया Kind Master. Let's listen, please. Desmos, Graphic Calculator, Grok, GeoGebra, TextMath, CapCut, Canva, Prezi, Filmora, Arlupa. ठीक है. हाँ. ग्रुप नंबर 4. Canva, InShot, UCut, Elots, WhatsApp, OpenShot, Quiver, VN, ColorNote, VUE, Mindomo, Stop Motion, Quizy, Pinterest, Kahoot, Quizzes, Testmos, Mentimeter, Puzzle. I'll repeat. Canva, InShot, UCut, WhatsApp, Elots, OpenShot, Quiver, VN, ColorNote, VUE, Mind Domo, Stop Motion, Quizy, Pinterest, Kahoot, Quizzes, Testmos, Mentimeter, and Puzzle. Last group. Stop Motion Studio, X9, Google Art and Culture, ChatGPT, Adobe Express, Kahoot, Quizzes, उसके बाद OBS, दीक्षा. So there was not much repetition. Hardly like, if we rule out also hardly 10 would be a repetition. So if we make the list, maybe 1 or 2 was not a mobile app exactly. It's a desktop software. But at least we could now know the name of 30 to 40 apps. Okay, so what I'm going to do is, I will be sharing after today's session one Padlet link. Okay, so you individually, you have discussed, somebody has told us, so one person has to write about one app in that Padlet. Just the name, what is it used for? So all of us will collaboratively make a sheet which has all the apps and users. So yesterday they were asking, कब का लिस्ट मिलते हैं मैम, कुछ मोबाइल का लिस्ट दे दो, कुछ सॉफ्टवेयर का लिस्ट दे दो. 5 मिनट में ये 45 people can make a quick list. That list will be shared with all of you. Like this, you can enable in your states diet level trainings also, so that what happens on a longer run is you will keep getting more of, because one person will never know all the tools, right? So एक person ka like this, some names keep coming, then we learn from each other. So today we are going to learn about how to create animation. Basically, it's an introduction to animation in education. What is animation? Why we didn't take? We learned about video, right? We also visited audio studio, more or less how the production happens. So we also wanted to learn about animation part thoda, so that we understand that there are various type of resources. Though we are not having e-content development training as part of it, just a kind of taste to developing a content. Okay, so we have with us Dr. Monica Nagpal. She is a visiting professor in
MIT Pune, and otherwise also she has worked earlier with NCRT, and she has been part of our organization, part of our trainings. So we never leave people. Once they step in, they are arrested here. So like that, they have to come, continue and support us. Though she is not working with us now, she continues to support as resource person in developing content, videos and all. This is the same with you people also. Once you show interest to support us as resource person, we will not leave you. We'll keep you calling for workshops, resource persons and all. There are many several diet faculty who are supporting us. So we wanted to only identify the person. Maybe out of 45, I hardly know 2-3 faces. All of you are new to us. So I don't know what is your skill set. So it is when we share willingness form which you wanted to contribute, you should express yourself, then we will continue to call you, do some kind of testing, we'll give you some sample work and we will continue. So you can also be a contributor like this at the national level as well, irrespective of being at state level. So we are going to learn about it. So we are going to sit like this only. Okay, you can only sit comfortably such that you can see the thing, because all the time sitting before the system very formally, this time you will sit in your group. Right? Over to you. So listen properly, because after a session you have to do the practical. Right? Very good afternoon. The states list I've seen, Hindi is I think okay, or mix or English, whichever you prefer. I know Hindi, I know few phrases, so I can make out. तो जो 5-6 लोग मुझे जानते हैं इस सेशन में, उन्हें पता होगा कि चुप नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो ये सेशन बेसिकली है एनिमेशन के ऊपर। कुछ चीजें हम स्किप करेंगे क्योंकि वो बेस होती हैं, चाहे वीडियो रिसोर्स बनाए चाहे ऑडियो रिसोर्स बनाए, हम कैसे बना रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस लगभग सेम रहता है। यहाँ हम एनिमेशन को समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन है क्या। हम बात करते हैं 2D 3D बड़े बड़े वर्ड्स की, अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े उसको, मतलब रियल लाइफ में समझाना पड़े, तो हमें उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। तो हम बनाने से ज्यादा पहले थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे, फिर ऐप तो मैं बता दूंगी तो भी आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज अब फेमिलियरिटी बहुत बढ़ गई है हम सबकी। सो लेट्स सी दिस वीडियो। इसमें कुछ एक एनिमेशंस हैं, पहले हम उनको देखते हैं। मैं बीच में पॉज करके पूछूंगी ये किस तरह की एनिमेशन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक समय की बात है। So what was this animation? क्या थी वो जो अभी हमने एक एनिमेशन देखी, किस तरह की एनिमेशन थी वो? टेक्स्ट कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप ऑफ एनिमेशन पे फोकस करेंगे अभी हम। कंटेंट को अभी आप छोड़ दीजिए। इंट्रोडक्टरी एनिमेशन, और कोई भी, मतलब गलत सही नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नाम नहीं है उसके। 2-3 तरह से कैटेगराइज करेंगे तो अलग अलग नाम निकल के आएंगे। सोशल मैसेज वो थीम हो गया, वो अगेन कंटेंट की बात हो रही है। मैं टेक्नोलॉजी, ये मतलब ट्रांजिट हो रहा है, मतलब ये एनिमेशन टाइम टू टाइम मतलब वो दिखाया जा रहा है, तो ट्रांजिशनल, ओके, यस, 2 डायमेंशनल, वेरी गुड। तो अगर एक कैटेगराइजेशन हम देखें, हम 2D और 3D की बात करते हैं, फिक्स्ड हो गया 2D है। और कुछ हम इंफोग्राफिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमने और कुछ नहीं किया, या टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन कह सकते हैं। तो
ऐसा नहीं है एनिमेशन 2D और 3D है। 2D में भी 10 टाइप्स की हो सकता है मैं भी सारी ना बताऊं, बट वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन कि हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट उसका हमने देखा वो 2D एनिमेशन है, राइट? इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन। उसमें ना फॉरवर्ड का आ जाता है, इसमें स्लाइड शो की उसकी वजह से आ नहीं रहा है, बट कोई नहीं, हम सारी एनिमेशन आगे देखने वाले हैं, तो मैं इसको आगे करती हूँ। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स 2D के देखने हैं, यहाँ नहीं देखेंगे, आगे उसमें देखेंगे। अब हम बात करते हैं हम एनिमेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं। इंटरएक्टिविटी के लिए, टू ब्रिंग पिक्चर्स टू लाइफ, रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए भी, रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए भी, मतलब रियलिटी लगे। एनिमेटिव अगर करते हैं तो वो चीज रियल लगता है थोड़ा, मतलब एनिमेशन तो रियल से उल्टा हुआ ना, नहीं मतलब विजुअलाइज करने के लिए आप कहना चाह रहे हैं। हो जाता है ना, और इंटरेस्टिंग मतलब कि जैसे कंसेप्ट को बच्चों के विजुअलाइजेशन हाँ, करने के लिए। राइट नाउ, राइट, एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट बनाने। बिल्कुल ठीक है। और जो रियल का वर्ड हम कंफ्यूज हुए वो ये था कि हम रियलिटी को थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर देते हैं एनिमेशन में, थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं, तो हमें वो कोई भी चीज जो नई होती है हमें वो अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। यस, एनीथिंग एल्स? कुछ और जो रियलिटी में दिखाना पॉसिबल ना हो उसको एनिमेशन, बिल्कुल, यस, फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, यस मैम, More senses can be involved in learning. यस, मोर सेंसेस ऑफ कोर्स। कुछ और? ये वैसे नॉर्मली आपने जितने पॉइंट बताया वीडियो के लिए भी पॉसिबल है, तो एनिमेशन के लिए अलग क्या है? कैची होता है, हटा भी सकता है। सर ने बोला कंसंट्रेशन क्रिएट करता है, तो मैं हटा सकती हूँ, अब बता के मौका दीजिए, मैं सबका कंसंट्रेशन हिला दूंगी। सो ये हमारे मूड को बिल्कुल एक अलग जोन में ले जाता है। हम सीरियसली पढ़ रहे हैं लेकिन एक अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें उस रिसोर्स में मिलती है, जिससे कि हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। बाकी अटेंशन की बात कर ली हमने, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर ली, और जो दूसरी मेन बात थी कि फैंटेसी है, और फैंटेसी चाहे बच्चे हों या बड़े, हम सभी को कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। और बाकी एनिमेशन जो है वो ऑफ कोर्स नए नए कॉन्सेप्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को, सबको लाइव दिखाने में थोड़ा सा मदद करता है। टाइम सेट होता है ना, जैसे ये ओरली हो या पिक्टोरियल हो, ये बहुत कम समय में बता देती है। बिल्कुल, हमने अगर कंसाइज तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को डील किया है, ये एज अ टीचर हमारे ऊपर है। हम एक कॉन्सेप्ट को ड्रैग करके, लंबा करके, बोरिंग करके, कोई भी रिसोर्स हो, टाइप ऑफ रिसोर्स, उसे खराब कर सकते हैं, और कोई भी रिसोर्स को हम मोस्ट यूजफुल बना सकते हैं। ये एक टीचर की कैपेबिलिटी है। नाउ हमने देख लिया एनिमेशन क्या करता है, अब एनिमेशन होता क्या है। कुछ पहले हमने थोड़े से आंसर्स दिए थे। सीरीज ऑफ स्टैटिक इमेजेस, यस, वीडियो ऑफ स्केचेस, video of sketches. Anyone else? The art of creating illusions from the still images. Yes. So this is the basic definition of animation. कि ये एक illusion create करता है हमारे अंदर। इमेजेस को हम मूव करते हैं और हमें लगता है कि वो मूविंग इमेजेस हैं, बट वो होती नहीं है। सो इसमें सिर्फ एनिमेशन काम नहीं करता, हमारी ह्यूमन बायोलॉजी भी काम करती है। साइंस के टीचर्स हैं यहाँ पे, कैसे काम करती है? 1 मिनट में अगर आप
भूल गया कितने नंबर पिक्चर आपसे पास करें तो नेट मूव करता है। ट्रेन में One जा by रहे हैं ten. सर में पेड़ मूव करता दिख रहा है ना, बच्चे को हाँ। क्यूरियोसिटी होती है, ट्रेन में बस में जाते हैं तो पेड़ हमारे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या वो यही कॉन्सेप्ट है? हाँ, persistence. हम बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की। हमारे सामने एक के बाद एक आ रहे हैं तो हमें लग रहा है वो मूव हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। पर परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? वो ये है कि हमारी आंख जब किसी चीज को देखती है तो ब्राइटनेस डिपेंड करेगी कि वो कितनी देर तक वो चीज हटा ली जाए तो भी हमारी आंखों पे रहती है, पर्दे पे रहती है। वो है परसिस्टेंस। तो जब वो उतनी देर तक रही और उतने में ही उससे रिलेटेड चीज आ गई दूसरी, तो क्या है, वो मूवमेंट लगने लगी है। सो इट्स नॉट जस्ट द आउटसाइड, हम जो बिहेवियर कर रहे हैं कि दो चीजें बार बार आ रही है तो मूव हो रही है, नहीं। यहाँ पे हमारी आंखों का भी साइंटिफिकली एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो मोशन फील हो रहा है। अब जो हमने बोला उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक इमेज है, ये दूसरी इमेज है। हमने एक बॉल ली, एक जगह रखी, थोड़ा सा मूव किया, दूसरी जगह रखी, तीसरी जगह रखी, तो क्या लग रहा है हमारी आंख को? क्योंकि हमारा जो पहला विजन था वो फेड हुआ है, खत्म नहीं हुआ, तो वो मूवमेंट नजर आ रही है। सो दिस इज एनिमेशन। अब हमें ये क्लैरिटी रही कि वो सिर्फ स्टैटिक पिक्चर की मूवमेंट नहीं है, उसके अलावा भी उसमें एक कॉन्सेप्ट है। नाउ दिस इज अ वही स्टैटिक पिक्चर से कैसे वीडियो बनती है, कैसे मोशन नजर आता है, आप देख सकते हैं। इनिशियल एनिमेशंस जो बनी थी वो लगभग यही कॉन्सेप्ट था। शुरुआत जब एनिमेशन की हुई थी, फ्लिपबुक की थी वो, और हम सबने शायद बचपन में ये किया हुआ है। हम लोग कुछ कुछ बना के ऐसे करते थे, छोटी छोटी ड्राइंग्स, ज्यादा बड़ी नहीं। इतने बड़े कलाकार मतलब मैं तो नहीं थी। कैन यू सी अ होल स्टोरी इमर्जिंग? रिप्ले ओके, मतलब ये अवेलेबल है ऑनलाइन भी। You can check this on YouTube. कार्ड्स में वो बस ड्राइंग है, ड्राइंग। साउंड और म्यूजिक इफेक्ट बाद में लगेगा सब कुछ। ओके, टाइम कितना लगता होगा जस्ट इतना टाइम लगा ड्राइंग बनाने में? तो एनिमेशन में काम बैकग्राउंड का ही है, वीडियो रिकॉर्डिंग का थोड़ी कुछ है। मोशन मतलब कैसे स्टॉप मोशन में डाल देंगे? तो बाकी तो फ्लिपबुक को वीडियो रिकॉर्डिंग किया है ना, तो एडिटिंग और बाकी प्रोसेस तो सेम हो गया, इसीलिए मैंने कहा था एनिमेशन अलग नहीं है। पर एनिमेशन का बैक एंड वर्क बहुत ज्यादा है, जो आज आप लोग करेंगे भी। बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। सो ये भी वही है, स्टॉप मोशन ही है, एक एक करके। यहाँ पे क्योंकि फ्लिपबुक है तो हम एक साथ करेंगे, तो एक एक फोटो को आप क्लिक करेंगे तो सेम फील देगा। नाउ हमने बात की टाइप्स ऑफ एनिमेशन की। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो उसमें भी एनिमेशन ही होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि 2D क्या है और 3D क्या है। जैसे हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ लिया, आप बोलेंगे कि एनिमेशन के चक्कर में साइंस पढ़ा दी है हमें, पर डोंट वरी, पहले मुझे पढ़नी पड़ी थी। सो यहाँ पे हमारे सामने चारों डायमेंशंस हैं। 0 डायमेंशन का क्या मतलब होता है? जो मैथ्स के टीचर्स हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं बताने में। डॉट, नो मूवमेंट, कुछ नहीं है, ऊपर कोई स्पेस नहीं है, नीचे कोई स्पेस नहीं है, कहीं भी नहीं है। 1D यूनिडायरेक्शनल। कोई रियल लाइफ का एग्जांपल? यस, वेरी गुड। आपको किसी ने बोला कोई ट्रेन से आ रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, हम पूछते हैं कहाँ पहुंचे, बोला 1 घंटा दिखा रहा है, तो हमें आइडिया हो गया वो कहाँ है। एक ही डायरेक्शन में सोचना है हमें, उसके ट्रैक पे, कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं है। 2D क्या हुआ? वो ट्रैक था, अब प्लेन ऐड हो गया, स्क्वायर बन गया वो।
ठीक है, स्क्वायर बनने से क्या हुआ, अब मैं अगर पूछती हूँ कहाँ पे हो, तो उसे मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना पड़ेगा, डबल इंफॉर्मेशन हो गई, जितनी थी उससे डबल हो गई। उस वक्त उसने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी थी मुझे। अब उसने मुझे बोला कि मैं उससे इतनी दूर हूँ और उससे उतनी दूर हूँ, तो मैं यहाँ कहीं हूँ। नाउ आई विल फाइंड आउट। अभी भी मैं नहीं बता सकती वो कितनी देर में पहुंचेगा, क्योंकि वो इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, हमें नहीं पता। सो डायमेंशन से कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई। हमने 3D की बात की, तो एक कॉन्सेप्ट जो मुझे स्कूल में कभी समझ नहीं आया, क्यूब, वो आ गया। तो उसमें क्या हुआ, क्या ऐड हुआ 3D में, एक और एक्सिस ऐड हो गया, वो ठीक है। पर अगर एक टीचर को आसानी से एक्सप्लेन करना हो तो क्या ऐड हो गया, जैसे मैंने बताया कि अब स्क्वायर बन गया, तो स्पेस ऐड हो गया। पेपर में बता सकती हूँ, हाँ। पेपर में नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, अब अगर इसमें एक और हम एक्सिस ऐड कर दे, मान लो जी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो वो एक और एक्सिस हो गया। तो वी कैन कीप एडिंग दोस डायमेंशंस। ये है 2D 3D, और जब हम बात करते हैं 4D, आप लोग बाहर घूमने जाएंगे तो वो 7D एक्सपीरियंस जो बाहर लगे होते हैं मेले में, आपने कभी देखे होंगे किसी ने। मतलब इतनी डायमेंशन होती नहीं है जितनी वो लगा देते हैं। बेसिकली क्या होगा, आप कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी भी हिलेगी, अगर वीडियो में पानी का वो है तो आपके ऊपर भी फुहार आएगी, तो सारे डायमेंशन ऐड कर दिए उन्होंने। कभी आप मेले में जाइए, मतलब थोड़ा बहुत, कभी कभी तो हम लोग हर बार नहीं देखते सारी चीजें, बट वंस इन अ व्हाइल जाने से ये वाला एक्सपीरियंस मिलता है। सो ये है हमारा डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग। अब गोइंग बैक टू द वीडियोस जो हमने दो देखी, एक वो टेक्स्ट बेस्ड थी और एक वो फ्लिप बुक थी, वो कौन सी एनिमेशन थी? अब थॉटफुली बताइएगा, पहले भी बताया है आपने, नहीं स्टॉप मोशन थी, इनमें से कौन सी थी? 2D 2D। और जब वो पास हो रहा था तो वो लग रहा था अपीयर हो रहा था 3D की तरह। अपीयर हो रहा था, वो लग रहा था, बिकॉज उसकी ड्राइंग उतनी वैसी थी, पर ये प्योरली 2D एनिमेशन है। अगर मैं वीडियो की टर्म्स में बताऊं 2D क्या है, तो जो कैरेक्टर की ड्राइंग है ना, जितना हमें दिख रहा है वो उतना ही है, उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, स्पेस आता तो वो 3D हो हाँ, जाता। पर अगर जैसे ही वो 3D होगा तो ये सब उसका पूरी डायमेंशन, शैडोज, वो सारी फॉर्मुलेट होने लग जाएगी। ऑल्दो 2D में भी हम शैडोज दिखाते हैं टू लुक लाइक रियल, बट आपको अभी वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या डिफरेंस है। सो इट इज एन एनिमेटेड फिल्म विच इन्वॉल्व्स फ्लैट कैरेक्टर्स। हमने बोला ना जो दिख रहा है उतना ही है वो। मूविंग ऑन अ 2D कैनवस। अब देखिए दो चीजें आ गई, एक है हमारे कैरेक्टर्स, हमने वहां जो भी फर्स्ट वाली वीडियो देखी उसमें तो बैकग्राउंड पेपर है, तो वो तो वैसे भी फ्लैट है, और कैरेक्टर्स भी उसमें फ्लैट थे। कभी कभी इंटरमिंगल्ड भी हो सकता है कि 3D कैनवस है, मतलब कैनवस ऐसा है, पूरी लेयर्स है उसमें, पर कैरेक्टर फ्लैट है। कभी कभी 2D कैनवस होगा, फ्लैट पेपर, पर जैसे मान लीजिए अब आप स्टॉप मोशन में बनाए, तो आपने पपेट रख दिया तो 3D कैरेक्टर हो गया, पर चार्ट पेपर आपका फ्लैट हो गया। सो दिस, देयर आर टू थिंग्स इन वन एनिमेशन, दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये है एक और एनिमेशन का ही वो एग्जांपल। दिस इज प्योरली 2D बैकग्राउंड एंड 2D कैरेक्टर्स। नहीं लग रहे, लगेंगे आपको 3D। यही है कि कितना पास हम चले जाते हैं उसके, हम शैडोज और इफेक्ट वैसे क्रिएट करते हैं कि वो लगे 3D है, बट दिस इज प्योरली 2D। अगेन दिस रॉक से लग रहा होगा 3D है, पर नहीं, जितना दिख रहा है उतनी ही ड्राइंग है, उसके आसपास अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो ब्लैंक है। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल का एग्जांपल है, आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगी अभी उससे। देखा कैरेक्टर में पूरी, जैसे एक ह्यूमन बीइंग में पूरी वो होती है लेयर्स, वो सारी हमें दिख रही है। ये है हमारा 3D कैरेक्टर और 3D बैकग्राउंड भी। अब नॉर्मली हम जब भी किसी तरह के रिसोर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की।
क्योंकि हमारा एग्जैक्ट फोकस क्रिएशन नहीं है तो मैंने उसको नहीं रखा है, पर हर चीज का बेस हमेशा से कॉन्सेप्ट होता है, लेवल होता है, टारगेट ऑडियंस होता है जो हम एडी मॉडल में पढ़ते हैं, और एज ग्रुप जो हमारे लर्नर्स का है वो बहुत मैटर करता है किसी भी तरह की एनिमेशन बनाने के लिए। उनको ध्यान में रखते हुए ही हम पहले अपना कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइप ऑफ एनिमेशन अभी हम देखेंगे, और भी स्टॉप मोशन के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी हम देखेंगे। सो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रैच कुछ लोग फेमिलियर होंगे, यहाँ पे जो पहले की ट्रेनिंग्स में आए हैं हम लोगों ने स्क्रैच भी किया हुआ है। ये है हमारा मेन प्रोसेस, आइडिएशन, जिसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या बनेगा, कैसा वीडियो, कितनी देर का, कौन ऑडियंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से एक्सप्लेन होगा। फिर स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड हमने वीडियो में हमेशा बोला है कि उतना मैंडेटरी नहीं होता, पर एनिमेशन, क्योंकि आप समझिए जब अभी एक सर बोल रहे थे कितना टाइम लगा होगा ड्रॉ करने में, आई थिंक आप थे ना, हर एक शॉट ड्रॉ किया जाता है, पहले ड्रॉ करते हैं फिर उसे एनिमेट करते हैं, तो सोचिए कितना टाइम उसमें लगेगा। तो बैकग्राउंड बना एक आपका, एक दो बैकग्राउंड बन गए, पर कैरेक्टर्स बने, कैरेक्टर की डेफिनेशन हुई, साइड कैरेक्टर, सारा कुछ बना, फिर हर कैरेक्टर की एनिमेशन होती है। तो इसकी जो पाइपलाइन है, इसको पाइपलाइन बोलते हैं एनिमेशन बनाने की, अगर प्रोफेशनली बोले तो बहुत लंबी है। इसीलिए स्टोरी बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैरेक्टर कैसा दिखेगा, कैरेक्टर डिजाइन। मान लीजिए हमने बोला कि हमें एक टीचर दिखाने हैं, तो अब सारे ही टीचर हैं, हम कौन से टीचर की बात करें? वी वांट टू शो एन एक्सपीरियंस्ड टीचर और अ यंग टीचर और एंथुसियास्टिक टीचर, फीमेल टीचर, मेल टीचर, टीचर इन साड़ी और इन सूट। ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा ना किस स्टूडेंट के लिए बना रहे। सो ऑल दिस कैरेक्टर्स हम पहले सारी विजुअलाइजेशन करेंगे। साड़ी भी डालेंगे तो कैसी साड़ी? गो टू बिहार यू विल फाइंड आउट अ डिफरेंट साड़ी, गो टू उड़ीसा यू फाइंड आउट अ डिफरेंट साड़ी। हमें वो सारी चीजें फिक्स करनी है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर जब फाइनल हो गया पूरी फिल्म में वही रहेगा, सिर्फ उसका कलर ड्रेस का चेंज होगा। तो इसके अंदर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए स्टोरी बोर्ड की शॉट लेना है, ड्रॉ करना है, तो कितना ड्रॉ करना है आपको बताना पड़ेगा, इतना कि क्लोजअप की फुल शॉट। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन द स्टोरी बोर्ड ऑफ एनिमेशन। यहाँ पे वो स्किप नहीं हो सकता। आपने मतलब बहुत ही क्लियर एग्जांपल था वो फ्लिप बुक, कि वो ऑलमोस्ट पूरी बनी हुई चीज है, अगर उसको हम रियल में प्रॉपर अब कंप्यूटर एनिमेशन की बात करें तो वो वैसा बन जाएगा। एंड देन वी नीड अ डिवाइस, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी हमारा डिवाइस है वो हमें चाहिए। तो आज के सेशन का फोकस, क्योंकि एनिमेशन अगर आप सॉफ्टवेयर के बेस पे करेंगे तो थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो हम सिंपल फॉर्म के लिए स्टॉप मोशन पहले सीखते हैं, उसमें भी सेम इफेक्ट मिलता है हमें। अब उसमें क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज स्टॉप मोशन? इसमें बहुत सारा पिक लिया जाता है जैसे ड्रॉ करने के बाद, देन उसको सबको सारे पिक को फोटो खींच के और उसका एनिमेशन बनाया जाता है, फिर उसमें सीक्वेंसली डालते हैं। ये स्टॉप मोशन बाद क्लास प्ले तो 5 की तब भी करेंगे ना ऑनलाइन मैडम, पहले क्लासेस में फोटो दिया खींचेंगे। गया था। उसमें हाँ, सेकंड लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर के पहले थोड़ा सा हुआ था मूव स्टॉप कर मोशन करके। का। उसमें एक टास्क भी दिया गया था, स्टॉप मोशन पे आप वीडियो बना के दे। तो उसमें हमने पिक्चर्स क्लिक किए थे और उसको सीक्वेंसली डालना था। उसके बाद फिर उसमें अपलोड करते तो वो फिर एक सीक्वेंस में, क्योंकि वो पिक्चर्स है बट वो जब मूविंग हो रहे हैं तो हाँ, वो लग तो रहा वो था कि वीडियो की तरह हमें फील दे। दे सो रहा है। बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सर को बहुत नींद आ रही है, पीछे सर को जगाया जाए। सर सीधे हो जाइए, टेक लगा के नहीं बैठिए, अभी सारी नींद खुलाएंगे हम, थोड़ी देर दीजिए मुझे। जैसे मान लीजिए आपने दो कैरेक्टर्स बनाए, चाहे ड्रॉ किए पेपर से, अब वो बात कर रहे हैं तो उनकी कुछ मूवमेंट होगी, उनको हिलाते हुए, एक हिलाया फोटो खींचा, हल्का सा दूसरा हिलाया, पूरा नहीं हिलाया, बहुत हल्के हल्के हिलाने से उसकी बहुत सारी फोटोज, एक एक मूवमेंट की आप 3-3 4-4 फोटोज खींचेंगे, और हर मूवमेंट बहुत बहुत स्मॉल होगी। उसको जब हम
इतनी स्मॉल करने का मतलब यही है कि जब प्ले करे तो झटका आंखों को नहीं लगे कि ये नहीं है, मोशन में नहीं है। एम वही है, आप एम को समझिए। फिर उन्होंने मान लीजिए मैंने आपको माइक दिया, ठीक है, ये स्टॉप मोशन एनिमेशन हम बना रहे, तो मैं माइक के लिए मैंने यूं करना है, इतना इतना बहुत स्लोली उनका हाथ आ रहा है, ऐसे एक एक यहाँ पे पता नहीं 100,000 फोटो आती है, खींचते जाएंगे और ये फाइनली ऐसे होगा, ये क्लिकिंग बहुत सारे होंगे, तब वो एक यस। तो ये आपका एक छोटा सा 2 सेकंड का वीडियो बनेगा। सो आप मेहनत समझो कि एनिमेशन में क्या मेहनत है, वो हम इसी से समझ जाएंगे। और जिसने स्क्रैच ट्राई किया वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। नाउ जैसे हमने बात की थी वो फर्स्ट वाली एनिमेशन क्या है, टेक्स्ट बेस्ड है, उसी तरह हम स्टॉप मोशन में भी कई तरह की बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट, क्ले, पपेट, कटआउट और सिंपल ड्राइंग, एनीथिंग कैन बी द एनिमेशन। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, ये हमारी इमेजिनेशन है कि हम क्या कर सकते हैं। हमने माइक से भी कर ही दिया ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड कोई रूल है कि हम क्या क्रिएट करने वाले, पर हाँ आप लोग डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सोचते रहिए जो आप बनाएंगे अभी। मैम एक क्वेश्चन, हाँ जी, पूछ रहे कि जैसे इसमें स्टॉप मोशन स्टूडियो है या क्या बता रहे हैं, इससे बनाएंगे, इसमें इतनी मेहनत वगैरह है, और अभी जैसे दिखा रहे हैं एआई टूल्स पे जो बन जा रहा है, दोनों में कौन सा बेटर है? मैंने दोनों का कंसेप्ट जानना चाहूँगा। सर देखो ऐसा है कि बेटर वर्ड तो मैं यूज ही नहीं करूंगी, हो सकता है बेस्ट हो कि हम एआई ही यूज करें, पर एक बात ये है कि एआई को मैं जब कमांड दूंगी, मान लीजिए मुझे खाना बनवाना है रोबोट से, मैं उसे कमांड देती हूँ कि भाई आलू का पराठा बना लो, ठीक है, पर मुझे उसे पूरी रेसिपी बतानी पड़ेगी ना, नहीं तो वो अपने हिसाब से 4 जगह की रेसिपी खोलेगा, मैच करेगा और बना देगा। पर जो मैं आलू का पराठा खाती हूँ और जो आप खाते हैं और आप खाते हैं, डेफिनेटली तीनों अलग है। इसको आप चाय से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम में से एक की भी चाय नहीं होगी जो मैच हो जाए, ठीक है। तो ऐसा है कि ये हमारे वो टूल्स हैं जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। एआई ने हमें इससे बेहतर ऑप्शंस दे दिए, आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं, पर जो मजा आपको ये बनाने में आएगा वो एआई नहीं देगा। और जहां तक कंटेंट की बात है, एक बार आपको प्रोसेस जब ये समझ, जैसे हमने 2D की डेफिनेशन समझी तो आपकी क्लैरिटी हुई, मेरी क्लैरिटी हुई, वहां पे वो क्लैरिटी हम लोग क्यों बच्चों को मना कर रहे हैं फोन यूज करने से? कर रहे हैं हम सब चैट जीपीटी मत यूज करो, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बेहतर ही तो कर रहा है वो। पर क्रिएटिविटी हमारा खुद का ब्रेन का यूज खत्म हो रहा है। सो बेटर तो हो सकता है आपका बेहतर बने, हो सकता है उसका बेहतर बने, ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है और आपके प्राउंड पे डिपेंड करता है। पर हाँ, एक रिसोर्स अगर आप सीखेंगे तो आप उस वाली लर्निंग को इम्प्लाई बहुत जगह कर पाएंगे। जो बच्चे चैट जीपीटी से डायरेक्ट करवा रहे हैं वो लोग कभी भी खुद से करने वाला हुनर नहीं सीख पाएंगे, यही डिफरेंस है। तो ये हर जगह ये क्वेश्चन अब आता ही है, मैं भी पूछ देती हूँ कि यहीं से करा लो। यस वी कैन, बट हमारी क्या लर्निंग है उसमें, और कब तक वो काम करेगा, कब तक हम काम करेंगे, कब तक हमारा ब्रेन। आपने वो देखी होगी आजकल एक इमेज फ्लोट हो रही है ब्रेन की, जिसमें पहले का ब्रेन जो लोग यूज करते थे और जो अब का है, तो उसमें जो पैसिव पोर्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड आने वाले 10 साल में वो ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला एक्टिव ब्रेन। मैम उसका एक एंगल ये भी है ना, हमें क्यों लगता है कि जो काम हम अभी कठिन खुद कर रहे हैं उसको एआई करेगा तब हमारा ब्रेन नया सोचेगा। हम जंगलों से यहाँ कैसे पहुंचे? बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि हम आग जला के ही कोई कठिन काम करके ही हमारा योग्यता हम वही लेके आते हैं। जब हम कठिन कामों को वैसे रिप्लेस करेंगे तो हम माइंड फ्री होगा, न्यू चीज सोचेंगे, तब सभ्यता आगे बढ़ेगी ना। पर वो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। हमको लगता है कि चैटजीपीटी आएगा तो हमारा क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। पर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या हम उतने एक्टिव रह रहे हैं, हम उतना नया एक्सपेरिमेंट कुछ लोग कर रहे हैं। अभी हमारे ऑफिस में ही है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उन्होंने अपना एआई बनाया है जिसको टेक्स्ट फीड करो वो स्क्रिप्ट लिख के देता है।
बना दिया उन्होंने, पर वो खुद बना रहे हैं ना, और वो ऑनलाइन नहीं है, तो उसको कॉपीराइट का भी इशू नहीं है। यस, ही इज वेरी राइट, बट अभी देखिए छोटी सी बात है, हाउस हेल्प, एक कॉन्सेप्ट है हाउस हेल्प, जो हमें हमारे कामों में मदद करते हैं, जिनके बिना हम बहुत ही अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, सर का पॉइंट वैलिड है, हम वर्किंग हो गए, पर अब हमें जिम में जाना पड़ता है टू मैनिपुलेट आवर फिंगर्स, टू मूव आवर लेग्स, क्योंकि हर जगह अर्थराइटिस फॉर्मुलेट हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। हमने आटा गूंदना छोड़ दिया, कितनी छोटी सी चीज थी, पर अभी वो फ्रोजन शोल्डर, आप देख लीजिए, डायरेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। सो हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, लेके चलना है और नई इन्वेंशंस में भी जाना है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी एंड एवरी पॉजिटिव थिंग विच इज हैपनिंग टू अस। सर ठीक कहा मैंने? बच्चों को भी सिखाना आसान है, So, बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? एवरीवन हियर प्लीज। बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? हम उन्हें रोक नहीं सकते चैट जीपीटी यूज करने से, पर हम क्या करते हैं? एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं कि इतना तुमने कर लिया, अब तुम इतना लिख के लाओ, हैंड राइटिंग बनी रहे। हैंड राइटिंग से मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं है, अगेन हैंड मूवमेंट है, उनका खुद की वो इमेजिंग है उस वर्ड की, भूल जाएंगे स्पेलिंग्स। और माइंड का आप सोचिए, हमारे केवल ऑटो करेक्ट से आप 10वीं के बच्चे से 8वीं की स्पेलिंग पूछ लीजिए, अगर वो बता दे। मेरी खुद खराब हो चुकी है। सही बोल रहे हैं। आई कैन टेल यू, रिसीव टाइप के वर्ड की स्पेलिंग जहाँ आई ई एक साथ आता है ना, 2 मिनट लगते हैं सोचने में कि कौन सा वाला डालना वो है। ऑटो करेक्ट में कर दो, बस हो गया। मतलब इतना छोटी सी चीज अभी याद आ रहा है, 10 साल बाद मुझे बिल्कुल नहीं आएगा। सो हमें वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ही वर्ड की स्पेलिंग WHAT से ज्यादा WAT हो चुकी है। एक्चुअली क्या है ना, फ्यूचर में ना क्या होता है, जब हम हैंड राइटिंग सीखे ना, पर्पस क्या था कि हमारा मैसेज कोई पढ़ सके, उसका पर्पस ये नहीं कि हमारे को एक्सरसाइज है ना, जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों कैरी करेंगे उस चीज को? उसकी जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, कम्युनिकेशन के लिए नहीं है वो, मैंने भी यही कहा, पर उसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं पहले हो रही थी, अब वो नहीं हो रही है। हम टाइपिंग करते हैं, हाँ। राइटिंग नहीं हो, आपकी जॉब में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लिखने की। हाँ बिल्कुल ठीक है, कहाँ लिखोगे बताओ, क्या चीज? अग्रीड। तो क्यों किसी को ढूंढते रहेंगे हम, जो चीज कि हम जो अब रेलेवेंट नहीं है, नई चीज आ गई है, तो सेम काम हम सर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग नहीं, व्हाट ही सेइंग इज नॉट रॉन्ग। आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सोचिए, हम लोग 4 पैर से 2 पैर आए ना, क्योंकि हमारी बॉडी ने वो चीजें एक्सेप्ट की। अब हम वापस ऐसे हो जाएंगे बेबी, मतलब व्हाटएवर द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू, फिंगर टाइपिंग फिंगर बन जाएंगी राइटिंग की जगह। बट मैम आज there is a theory of use and disuse as per the evolution, and this theory जिनको has been लगता है मैम कि फ्यूचर में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जैसे मिल रहा है कर रहे हैं, ठीक है वैसे ही चलेंगे। सबकी अपनी, देखिए यहाँ पे नीड्स के अकॉर्डिंग ही हर काम होते हैं। मैम जिसकी जैसी totally नीड्स agree with वैसे यूज sir. कर रहे हैं। One thing, जिसको लग रहा है कि मुझे Can लिखना we, ही नहीं है, मुझे अब जो भी कहते हैं इसमें, जितने AI टूल्स है, क्रिएटिविटी का क्या है? अगर मैं हैंड राइटिंग के बारे में बोलूँ, आप जब लिख रहे हैं, कुछ आर्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप देखिए आपका जितने सारे मसल्स है, और ये एनीवे सर ऐसा है, ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ा मजेदार है, मैं बहुत सारी बहस कर चुकी हूँ इसमें, मतलब बहस भी नहीं है, डिस्कशन है अच्छा सा। नो कभी क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हमारा कंजर्वेटिव माइंडसेट सामने आता है, हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, और चेंज हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो जाए, और जितना हम सोचते हैं कि जब बिना चीज आएगी तो हमारी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं हमको वो खत्म हो जाएगी। सर मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रही थी, जब पहली बार कंप्यूटर आया, जब पहली बार कंप्यूटर आया था देश में, एक मिनट सर, जब पहली बार कंप्यूटर आया था देश में तो बहुत हड़तालें हुई थी, क्योंकि लगा था जॉब्स चली जाएंगी, पर नहीं गई। जॉब्स हमेशा चेंज हुई है, एआई आया, आपकी स्किल चेंज हो गई, अब आपको डेटा वाला बनना है, देन आपको वो मैन्युअली फीड करने वाला बनना है, अग्रीड। पर उसके साथ ही हमें भी एक मशीन बनी, उसकी केयर करना हमारा काम है, वो हम किस मेथड से करना चाहते हैं वो आपकी अपनी फ्री विल है। हाँ, सो मैंने बता दिया वो आपकी फ्री विल है, आप अपने हिसाब से काम के थ्रू करना चाहते हैं, कोई अलग तरीके से करना चाहता है, वो उनकी विश है, तो ये गलत और सही मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अच्छा वीडियोस तो वो वाली आई ही नहीं, क्योंकि मैं उसी पे चलाती हूँ।
ना बहुत लंबी हो जाएगी बस। हाँ, अभी आएगा, अभी तो आया, उसमें क्यों नहीं आया? इसमें नहीं आ रहा वो पॉज करने वाला, बाकी सब में आ रहा है। मैं चाह रही थी कि वो पूरा मेरे बहुत सारे उसमें कंटेंट है। तभी वहां पे पुलिस आ धमकी करने उसका काम तमाम। सरदार अब आपका खेल खत्म। अभी वो जो बीच में वीडियो था वो पहाड़ी वाला जिसका एक स्क्रीनशॉट दिखाया था वो प्योरली 2D था। अब जो नेक्स्ट शुरू हो रहा है आप उसको एक्सप्लेन आप लोग करेंगे, सो बी केयरफुल ऑन दैट। ये 2D है, हमने बात कर ली थी इस पे, यहीं से प्ले कीजिए मैडम। ठीक है। एक समय की बात है, करता था गब्बर आराम, तभी वहां पे पुलिस आ धमकी करने उसका काम तमाम। सरदार अब आपका खेल खत्म। ये वीडियो को अब आपको एक्सप्लेन करना है, सो बी वेरी केयरफुल। When you choose to do something which benefits everyone around you, it begins to show. यस, क्या लर्निंग है आपकी, क्या समझ में आया इस वीडियो में आपको? यस सर। इसमें मुझे 360 डिग्री एक कैमरा, एक घूमने वाला जैसा एक दिखा, ओके। जो कि वो प्रीवियस में सिर्फ एक डायरेक्ट फ्रंट कैमरा था। ओके, एनीवन एल्स? कोई और डिफरेंस नोटिस किया आपने? कुछ भी? लेयरिंग है, लेयरिंग बढ़ गई है, तो लेयरिंग का मतलब क्या हुआ? 3D। हमारा इसमें क्या 3D है? सब मतलब मॉन्यूमेंट्स जितनी भी चीजें दिखाई हैं आपने सब एक के पीछे एक लाइक करती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, इधर से सब शांत है क्यों? ज्यादा हो गया ये तो। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, आपने सुने नहीं। यस, कैनवास 3D है और इमेजेस है वो 2D। कैरेक्टर 2D है। वेरी राइट, क्लैप फॉर सर। कैनवास आप देखेंगे वो जैसे मूव कर रही है रोड पे, तो वो रोड है, वो 3D जो उसमें इफेक्ट आ रहा है कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। वेरी गुड सर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कि जब कैरेक्टर्स 2D हैं पर हमारे बैकग्राउंड से ही कितनी रिचनेस उसमें आ गई। हाँ, आपने नहीं टर्म डाल दी, सूडो 3D। And the kindness spreads. इसको भी बताएंगे सब। मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्व कुमार। अश्व कुमार आया, अश्व कुमार, अश्व कुमार आया, अश्व कुमार। ये तो उल्टा वाला है। इसमें सब कुछ ना 2D ही था, सब कुछ 2D था, बट जो लेयर्स यूज की थी, फ्यू लेयर्स यूज की गई थी बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, ओके। लेयर्स यूज की गई है। और कोई? अभी मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगी, नो रिएक्शन। हाँ जी, कुछ यहाँ से आ रहा था। बैकग्राउंड 2D, कैरेक्टर 3D, और कोई? कैरेक्टर्स भी सारे मैम 3D के थे, कुछ 3D थे उनके हिसाब से, ठीक है, ओके। और कोई? पूरा 2D था। तो दो लोगों ने बोला पूरा 2D, एक वो सर एक मैम जो इनिशियली बोला, बाकी सुन के तो सब बोलते हैं, तो उनके लिए क्लैप करेंगे। ये पूरा 2D था। वो घोड़े से मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। वो भी 3D नहीं था, वो 2D था। वो मोशन ऐसा दिया हुआ था कि आपको लगेगा नहीं अभी 3D आ रहे हैं।
आएंगे आएंगे 15th August 1947, midnight. India awakes to a new life of freedom. But 2 centuries of colonial rule had decayed India from within, leaving the country ridden with poverty and hunger. Our founding fathers set out to wipe every tear from every eye. They needed a pole star, that single focal point to make India modern and progressive. Something that captured the uniqueness of the chaotic but eternally hopeful nation. पिछले वाले की बात करेंगे, इसकी नहीं, इसकी नहीं। नो पिछला वाला क्या था? 2D था, क्लियर? हाँ मैम, 2D था। का इम्प्लीमेंट ज्यादा शैडो तो वो तो ठीक है, वो पुराना दिखाने के लिए भी था। आते हैं इस पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो 3D है मैम। चिड़िया 3D मैं प्ले करती हूँ, आप देखना। ऑगमेंटेड भी हो सकती है ना। ओके वेट 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 वेट, मेरे पॉज करने में टाइम लग जाता है। जो पिछला था वो था क्या था? चिड़िया वाला। चिड़िया वाला हाँ फिक्स रियलिटी थी कि मैम, शूटिंग वो क्लियर नहीं देखे, थोड़ा सा फिर से वो दिखाई, क्योंकि आपने चीजें वो एनिमेटेड थी। VR. बेसिकली जो हमने न्यू मीडिया यूज किया, इसमें रियल कैरेक्टर भी था, एक इंसान भी था, चिड़िया रियल की भी थी और बीच में एनिमेटेड कैरेक्टर भी था। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ, बेसिकली एआर वाला कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि वो इसके अंदर मिक्स था। सो दिस इज न्यू मीडिया था, कंफ्यूजन ही होता है कि है क्या ये। सो आप सोचिए वो रियल आदमी जब वो एक चिड़िया के साथ डील कर रहा है, वो डेफिनेटली एनिमेटेड है बट वेरी नियर टू रियल, पर उसको बीच में रियल पे इम्पोज किया गया है ताकि हमें कंफ्यूजन हो कि ये क्या है। सेम विद गिलहरी। इनपुट्स सबकी नींद खुल गई? पहले बताओ, कोई सो रहा है अभी भी? ओके हाँ जी, 3D था बस। सो इट्स अ गेमिंग वो, तो इसमें 3D है पर एग्जैजरेटेड 3D है। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल, हम क्या करते हैं एनिमेशन को भी नियर टू रियलिटी रखना चाहते हैं कि अगर कैरेक्टर की जंप है तो वो ऐसी ही हो कि इंसान की लगे, पर इसकी जंप्स या कोई भी एक्टिविटी फॉर दैट मैटर वो बहुत एग्जैजरेटेड है। गेमिंग में नॉर्मली जो एनिमेशन यूज होती है वो एग्जैजरेटेड है। हाँ वही फैंटेसी है ना बहुत ज्यादा, तो यहाँ फुल फैंटेसी लगा रखी है। अदरवाइज इट वाज प्योर 3D। अब आपने देखा होगा, अगर मैं पुरानी वीडियो से रिलेट करूं, गब्बर वाली या वो अश्वक कुमार वाली, कि कैरेक्टर एनिमेशन वो कैरेक्टर 3D नहीं थे। इसको देख के हमें क्लैरिटी हो रही है कि वो 3D नहीं थे, क्योंकि इसकी मोशन बिल्कुल बॉडी दिख रही है, पत्ता नहीं दिख रहा है, वो चीज है। तो वो जब हम देखते हैं तभी हम कंपेयर करके उसको वहां तक पहुंच सकते हैं। So now we move on to our task. ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखने थे, वो हमने देख लिए। आज जो हम करेंगे वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन, और उसके लिए मोबाइल ऐप है स्टॉप मोशन स्टूडियो, जो आप लोग शायद डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उसकी थोड़ी सी निटिग्रिटीज हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ही आप ऐप को रन करेंगे आपको कुछ इस तरह का पेज देगा, एंड दिस इज द फर्स्ट लैंडिंग इंटरफेस ऑफ स्टॉप मोशन स्टूडियो। यहाँ पे जैसे ये एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, ये उन्हीं की है, मेरी नहीं है। यहाँ पे एक न्यू मूवी जो आप स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन बटन्स को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं कि सेटिंग्स में क्या है, आपको सब इजीली समझ आ जाएगा। पर मोस्टली फीचर डायरेक्ट आ गए हैं। इसमें पहले वाले जो ऐप था, जो पुराना वर्जन था, उसमें काफी कुछ सामने हमें
क्लिक करके देखना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट है। दिस इज व्हेन वी स्टार्ट और न्यू मूवी, जब हमने प्रेस किया कि हमें नया मूवी बनाना है, ये इंटरफेस खुलेगा। अभी भी ये क्लिकेबल नहीं है, इसके अलग अलग बटन्स है। हमें क्लियर है कि बैक जाना है, माइक है, प्लस करना है, मतलब प्लस मीन्स कोई इमेजेस लाइब्रेरी से ऐड करनी है या कुछ, वो सब। ये कैमरा है, कैमरा पे क्लिक करेंगे तब हम लोग एक्चुअल कैप्चरिंग मोड में आएंगे। अब उन्हीं बटन्स को एक्सप्लेन किया है हमने यहाँ पे। ये टाइम जब हम कैप्चर करते हैं तब हम इसी वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं बेसिकली। अनडू, कैप्चर, प्ले, अगर आप कैप्चर कर चुके हैं तो प्ले करके देख सकते हैं। बैक, सेटिंग्स एंड वॉइस ओवर। अब हमने जब रिकॉर्ड पे, कैप्चर पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आती है। जैसा हमारे हर कैमरा के एक रेड बटन इज कैप्चर, यहाँ पे जो ये जो स्क्रॉल जैसा दिख रहा है, ये आपकी उसकी, आप इसको एक बार इमेज कैप्चर करेंगे, प्ले करके देखेंगे ऊपर नीचे, आपको डिफरेंस नजर में आएगा। बेसिकली ये क्या बताता है कि कितनी, कंपेयर करने के लिए पुरानी इमेज से इसमें कितनी मूवमेंट हुई है, मतलब और ज्यादा ऐड करनी है तो आप फोटोज ऐड कर सकते। नाउ आपने कैप्चर से अपनी इमेजेस कैप्चर कर ली जितनी भी करनी है। वंस यू हैव डन दैट, वी कम टू द फर्स्ट स्क्रीन जो हमारी थी। अब आप देखेंगे जैसे ही इमेज आ गई हमारे पास ये ऑप्शंस खुल गई, ये पहले नहीं खुली हुई थी। इंसर्ट कैमरा मीन्स आपने 4 इमेजेस देखी, आपको लगा कि यहाँ पे एक और होनी चाहिए, सो यू कैन सिंपली वहां पे क्लिक कर सकते हो। पॉज, ऑडियो, एडिट, इरेज, हमें आई थिंक इन टर्म्स के मीनिंग हम सबको पता है। काफी कुछ हमें अलाउड नहीं है। अगर आप उसका प्रो वर्जन खरीदते हैं उसमें है, जो प्रीमियम वर्जन है उसमें हम अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर हम ऑडियो इंपोर्ट नहीं कर सकते, म्यूजिक इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमें फिर वही अपने वीडियो एडिटर के थ्रू करना पड़ेगा बाद में। तो जो फीचर्स बेसिक हैं वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। नाउ वंस यू हैव डन योर क्रिएटेड योर मूवी, कैसे उसको यूज करना है, सेव नहीं करना, खुद ही सेव हो जाती है वो। आपने क्लिक किया, वहीं बैक कर दिया, सब कुछ सेव है। मूवी पे क्लिक करेंगे, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास आ गई। शेयर करनी है, डाउनलोड एज MP4 करनी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करती हूँ, सो दैट मैं आपको एक बार फोन पे वही चीजें जो हमने वहां देखी है मैं आपको दिखा सकूं। वो मुझे उसके लिए ना एक ही नेटवर्क पे आना है। अच्छा, मेरे को ना पासवर्ड दोनों के लिए एक ही वाईफाई इज नॉट वर्किंग। नहीं चल रहा। कल फिर मेरे फोन पे कैसे, मुझे सेम वाईफाई वो कनेक्ट स्क्रीन दिखानी है। चलो मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, ऐसे होगा नहीं। हाँ वही करती हूँ, चल जाएगा। तो उसका उसको तो मेरा हाँ, मैं एक बार अपने से करती हूँ, नहीं तो आपसे दोनों डिवाइस करेंगे, फिर मेरा काम चलेगा। मुझे ये याद है। सर आपका आ रहा है वाईफाई यहाँ पे? इंटरनेट आ रहा है आपका? आ रहा है तो आप ही करवा लीजिए, मेरा आ ही नहीं रहा। इस हॉल में आता नहीं, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसने नाम लिखा है।
हमारी फोटो ले ले वो डाल दे। एक दो बार हम बनाए भी हैं। अब आपकी स्क्रीन पे मेरा मोबाइल दिखेगा। एक साथ इतना डिवाइस। सो ये हमने फर्स्ट स्क्रीन देखी थी। अब हम पहले मैं एक मूवी दिखाती हूँ, छोटी सी, मैंने इसलिए इतनी सिंपल रखी थी कि वो देखकर ही समझ आ जाए हमने उसमें क्या किया है। सो ये आप देख रहे होंगे, ये वही स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके ऊपर वही बटन्स आएंगे जो जो हमने देखे। अब मैं इस मूवी को प्ले कर रही हूँ। सिंपली बॉल से हमने एग्जाम्पल को देखने के लिए कि किस तरह से वो मोशन हो रहा है, जबकि वो अलग अलग मोशन में अलग किया हुआ अलग है। एक एक मूवमेंट के साथ उसको फोटो खींचा हुआ है। यही हमें कर रहा है। अब हम अपनी नई मूवी बनाते हैं। ये हमारा आ गया, मेरा कैमरा भी रेडी है आपके सामने, ठीक है। तो लीजिए मैम, आप माइक दीजिए सर को, हम फोटो खींचते हैं। ओके मैम। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डेमो कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। अब मैं कैमरा बटन पे जाऊंगी, ये वाले कैमरा बटन पे, और मैं इसको क्लिक करना शुरू करूंगी। ठीक है। अब एक चीज को याद रखना है सर, मैम एक मिनट, मैम एक चीज का ध्यान रखना है हमें इस पूरे उसमें कि हमारा कैमरा एक पोजीशन पे स्टैटिक रहे। तो या तो जैसे जब आप क्लिक करेंगे आप एक जगह टेक लगा ले, कोई एक पर्सन, जब सब कुछ रेडी हो जाए, पहले आप लोग अपना जो भी कंटेंट क्रिएट करना है वो रेडी करेंगे, फिर एक पर्सन बिल्कुल ऐसे स्टैटिक ताकि वो सिर्फ फोटो खींचेगा, दूसरा कोई मूव करेगा। ये बहुत जरूरी है एनिमेशन में, नहीं तो पूरा ही फ्रेम हिल गया तो फिर तो सब कुछ ही चेंज। हाँ, अगर सीन चेंज हो रहा है वो रिक्वायरमेंट है, एक अलग बात है, पर जब तक रिक्वायरमेंट है एक फ्रेम में रहने की, हमें उसको, ठीक है। सो नाउ वी विल जस्ट क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स। मैम सर को जो है माइक पकड़ाएंगी, तो हम इसको देखते हैं एनिमेशन, वही जो मोशन हमने सुना था वो वाला, ठीक है मैम। ओके, चलिए बस अभी में इतना ही रखते हैं। नाउ आई जस्ट सिंपली प्ले। आप देखिए कैसे आई, अभी बहुत जिटर आया क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट है। आपको ये मूवमेंट बहुत स्लो रखनी है, तभी वो आपका काम होगा। अब हमने इतना कर लिया, ये कैमरा था, अब मैं ये बैक बटन प्रेस करूंगी, ये मेरी सारी एल्बम मेरे पास आ गई, जितनी मैंने फोटोज खींची हैं ये आ गई। अब मेरे को इस पे नरेशन देनी है। अच्छा पहले मैं ये बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक फोटो पे क्लिक किया, ये मेरे पास लाइब्रेरी आ गई कि मुझे क्या करना है। अब इंसर्ट कैमरा का मतलब है, मैं जैसे इंसर्ट कैमरा करूंगी बीच में वो कैमरा दे रहा है कि आप यहाँ फोटो नहीं खींच लीजिए, ऐड करने के लिए बेसिकली, अदरवाइज कोई वो नहीं है। बाकी हमें मर्ज वगैरह सब पता है। नाउ आई गो टू द माइक बटन। ये माइक बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, रिकॉर्ड ऑडियो आ गया मेरे पास। ओनली दिस टाइम मैं अपनी परमिशंस हमेशा वैसे रखती हूँ कि मुझे उसी वक्त देनी हो। अब मैं जैसे ही रिकॉर्ड दबाऊंगी मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और उस वीडियो के साथ मैच हो जाएगी। बाद में आप उसको एडिट कर सकते हैं, अलग रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए ये वीडियो ले लिया आपने, आप अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और किसी और सॉफ्टवेयर पे जहां आप टाइटल और ये सब लगा सके वहां पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। सो पासिंग द माइक टू सर, मैंने इतनी ही रिकॉर्ड किया ऑडियो एंड आई से प्ले। ऑडियो भी इसमें शायद कम हो रही है, नहीं हुई है। सो दिस इज बेसिकली वही ऑडियो आ रही है आपका, ये एक पूरा वीडियो इस तरह से तैयार हो गया। हम लोग सही से दिए मैम।
मैम वो साउंड नहीं आया लेकिन हाँ वो शायद इसका प्ले वहाँ नहीं आ रहा था, अभी डेमो नहीं आ रहा था, तो वो ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा, वो सब टेस्टेड है वो सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो हम वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको डिस्कनेक्ट तभी करूंगी। और कुछ इसके अंदर अगर आपको देखना है तो सिंपली अब आप देखिए, हमने कोई वो सेव नहीं की थी आपके सामने फाइल, बट वो सेव्ड फाइल आपके सिस्टम पे दिख रही है। ओके हाँ, अब मैं उसी पे क्लिक करूंगी और मेरी वो ऑप्शंस आ गई। लॉन्ग प्रेस करके प्ले करना है, सेव एज करना है। इफ आई से सेव एज, तो आपके पास सारी ऑप्शंस हैं कि आपको प्रोजेक्ट की तरह सेव करना है, मूवी की तरह करना है, एनिमेटेड जिफ भी आजकल हम लोग के लिए ट्रेंडिंग है, वो कर सकते हैं, फ्लिप या फिर एनिमेटेड जिप पे कीजिए ना। देखते हैं ऐसा क्या है। और अगर आपको सारी इमेजेस का एक्सपोर्ट चाहिए तो सिर्फ इमेजेस भी मिल जाएंगे। यस, देखो तो क्या बन रहा है, कर दे खींच रहा है। हाँ मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, वो मेरे लिए भी उतना ही बड़ा सरप्राइज होगा। मैम वो तो मैंने देखा नहीं है, सॉरी। हाँ ज्यादा नहीं है, ये काफी टीचर्स ने लिया हुआ है। 590 रुपए। क्या करेंगे? क्विक रिस्पॉन्स। कुछ आ भी रहा था, मुझे तो ये ब्लैक वो प्राइवेसी इसमें जब आपका होगा तो रेडी बता क्या फाइल नेम लिया था उसने, कुछ तो फाइल नेम भी लिया था, मैंने देखा हमने यहाँ पे बनाया क्या? हाँ किया क्या है? किया क्या है वो तो अब आप करेंगे ना। सी मैम देखिए, ऐसा है कि हमने एक डेमो देखा कि स्टॉप मोशन कैसे काम करता है। अब हम आपको रिसोर्सेज देंगे और आप कुछ ड्राइंग या ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उसके बाद आप इस ऐप की हेल्प से अपना एक रिसोर्स बनाएंगे। आप मोशन में सो हमने यहाँ पे करके पूरा, ऑफ कोर्स मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं एक एक ऑब्जेक्ट लेके आऊं, क्योंकि वो फिर अपने आप में टाइम, हमने सिर्फ डेमो सीखा है कि ये ऐप कैसे काम करता है और एनिमेशन क्या है, वो हमें कैसे एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, हमने वो डिस्कस किया। वो तो लेक्चर का पार्ट था। हाँ वो लेक्चर ये डेमो था मैम, सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं कि बेसिक्स हमें उसके समझ आ जाए, जब हम करने जाएं तो वीडियो बनाया जो आपने इसको इंसर्ट किया एनिमेटर के तौर पे, वो तो एक वीडियो फॉर्म में बना। वो वीडियो तो एनिमेशन तो आउटपुट तो MP4 ही होता है। नो मैम, एनिमेशन इज डिफरेंट एंड वीडियो इज डिफरेंट। मैम ऐसा है कि एक सेकंड एवरीवन प्लीज, अभी हम इसी पे ये जो एक मिनट सब लोग, एक मिनट रुकिएगा मैम प्लीज। फोटो खींची थी, फोटो नहीं बनाया था। एक मिनट इट्स ओके, उनका क्वेश्चन वैलिड है, बिल्कुल ठीक है मैम। आप जो कह रहे हो वो वीडियो ही था, और एनिमेशन को भी अगर आप टेक्निकल फॉर्म में देखेंगे, जब एक्सपोर्ट होती है वो एक MP4 फाइल ही होती है, वीडियो ही होती है। हमने यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स यूज नहीं किए हैं। नॉर्मली एनिमेशन को हम कोई ना कोई कैरेक्टर से आइडेंटिफाई, प्लीज एवरीवन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी का क्वेश्चन है वो अगर इस क्वेश्चन के माइंडसेट से ही जाएंगे तो वो इसको यूज कभी नहीं कर पाएंगे। आई एम हियर टू हेल्प ईच वन ऑफ यू इन क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। तो मैम हमने यहाँ पे, क्योंकि हम एक एक ऑब्जेक्ट को मूव करके अभी उतने रिसोर्सेस सब लोग उसी में लग जाएंगे, फिर दिखेगा नहीं, तो हमने सिंपली ये दिखाया कि स्टॉप मोशन जो काम कैसे करता है, कि हमको कितनी देर में पास करना है, एक चीज को मूव करना है जिससे कि एक मोशन का विजन पर्सपेक्टिव आए, वो हमने यहाँ पे देखा था। हमने यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं बनाया है, यहाँ हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, एप्लीकेशन कैसे काम करती है उसका डेमो किया है। अभी आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उसके बेस पे आप अपना कोई टॉपिक सोचिए। आप एक, जब आप उसकी इमेजेस क्लिक करेंगे तब आपको ये नॉलेज हेल्प करेगी कि मुझे बहुत हल्का मूव करना है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, हाँ, एप्स हैं, उसमें भी 30 सारी पिक्चर्स डाल करके हम उसको एनिमेट एज वीडियो कर सकते हैं। वो तो ये तो प्योर इमेजेस हैं। जब आप उन इमेजेस को
क्रिएट करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, कैरेक्टर वाली लेकर के उनको पर आपके उसके अंदर क्या होता है ना कि आपको एक एक इमेज, आप मान लीजिए आपने 200 इमेज क्लिक की, हमने तो हार्डली 15-20 की हैं अभी, पर जब आप 200 इमेज को प्लेस करेंगे खुद से, कितनी देर के लिए करना है उसको फिर, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है हर इमेज को अराउंड 10 सेकेंड या 5 सेकेंड भी टाइम देते हैं, इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मोशन नहीं आएगा, तो आपको उसको हर एक को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ वो काम एप्लीकेशन करके दे रही है, ठीक है। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। और किसी का कोई प्रश्न है कि कोई भी, मतलब कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है या कैसे एनिमेशन काम करती है, तब तो प्रश्न ही प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है। जो चीज पेड है हम उसको अभी टच नहीं कर रहे हैं, और जो फ्री है वो बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स है, वो हम आराम से कर सकते हैं। स्क्रैच तो बिल्कुल, देखिए इसमें हमारा मैन मेड एफर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स खुद से जो बनाने के हैं बहुत ज्यादा है। स्क्रैच में भी इंडिविजुअली मेरा एफर्ट बहुत होगा कि मैं बैकग्राउंड बनाऊं, उसमें मूवमेंट्स डालूं, बट स्टिल इससे काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं, अगर आप अपने कैरेक्टर भी इंपोर्ट करते हैं तो वो लाने हैं, यहाँ कैरेक्टर भी बनाने हैं, बैकग्राउंड भी बनाना है, प्लस वो एक कंप्यूटर क्रिएटेड ग्राफिक्स है, तो वो ज्यादा नीट, ज्यादा कलरफुल है जितने यहाँ हम बना पाएंगे, प्लस उसके अंदर हम क्लियरली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं कि कैसे काम करती है चीजें कंप्यूटर में। हम अगर चाहते हैं, जैसे हमने एआई का क्वेश्चन लिया, तो एक एक स्टेप का जो कमांड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब मैंने बोला मूव तो मूव करेगा, अगर मैं चाहती हूँ वो ऐसे आए तो उसके लिए टर्म है ग्लाइड करके आना है, तो वो बहुत क्लैरिटी हमें चाहिए कि हम कितना 10 स्टेप्स में वो कितना मूव करेगा, 45 डिग्री पे कहाँ जाएगा। सो प्योर फिजिक्स और प्योर मैथ्स लगता है उसमें जब हम वो प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे हम छोटे बच्चों की तरह स्टोरी बनाएंगे और उसको वो करेंगे अभी के लिए। तो ये टेक्निकली देखें तो सिंपल है, पर मैनुअली देखें तो काफी मेहनत वाला काम है, ठीक है। सो हाँ जी, इंडिया में एनिमेशन कब से यूज हो रहा है? सर मुझे साल तो याद नहीं है फ्रैंकली, बिल्कुल भी। इंडिया में तो बहुत लेट, बहुत पुराना नहीं है, पर जो बहुत पुरानी एनिमेशन है वो बहुत, मतलब इट्स लॉन्ग बैक एक्चुअली, मुझे बिल्कुल ईयर मैं मेंशन ही नहीं करूंगी, क्योंकि सवाल मेरा इसलिए आया कि 1957 में एक मूवी आई, बच्चों का एक गाना है, चुन चुन करती आई थी, वो उसमें एनिमेशन यूज किया, तो वो शायद 2D एनिमेशन है। हाँ सभी 2D थे, अभी 3D का तो अभी कुछ टाइम से ज्यादा हुआ। टाइम से चल रहा है, उससे पहले से? नहीं, उससे पहले से है, एक बहुत पुरानी एनिमेशन और मूवी भी है, पर मुझे ईयर बिल्कुल मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगी, उस तरह से हिस्ट्री नहीं पता मुझे। जो हम वीडियो कैमरा होता है ना, उससे जो हम वीडियो उठाते हैं लाइव, वो भी एज ए पिक्चर लेते हैं, उस टाइम कैसे काम, किसका वीडियो कैमरा का? वीडियो कैमरा का पिक्चर लेते हुए क्या प्रोसेस रहता है? एक मिनट सर, एक मिनट सर, सराउंडिंग में हाँ इमेज ही होती है, उन्हीं को प्ले करवाते हैं। नहीं, वीडियो कैमरा देखिए होता ओवरऑल हमेशा स्टैटिक ही है, जब आप एडिटिंग टेबल पे उसको लाएंगे ना वो एक एक फ्रेम बन जाएगा। वीडियो जो है, सर का क्वेश्चन है, एवरीवन प्लीज एक मिनट, वीडियो कैसे काम करता है वीडियो कैमरा? तो वीडियो जो बनता है वो बनता है 24 फ्रेम्स पर सेकेंड या 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, दोनों फ्रेम्स काम करते हैं। आजकल हम 48 भी कर देते हैं। जो इसमें होता है एनिमेशन में वो है आई थिंक 1 सेकेंड में हम 2 फ्रेम्स दिखाते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब 24 फ्रेम्स जब वीडियो में जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमें टेक्निकली वो दिखता नहीं है, पर जब हम एडिटिंग टेबल पे लाते हैं वो फ्रेम्स आपको दिखते हैं कि एक एक फ्रेम है फोटो का, और वो फिर क्योंकि वो इतना पास है कि वो मूवमेंट की फील दे रहा है, ठीक है। ये है वीडियो का टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम अलग अलग इमेज को कैप्चर करके फिर रख रहे हैं, वहां वो डायरेक्टली वीडियो की फॉर्म में क्रिएट कर रहा है, पर है वो इमेजेस ही, उसमें से वो निकालना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत
विड है उसके अंदर, इसके frames बहुत होते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रेम्स होते हैं आजकल ये। तो 60 FPS आता है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, अभी 48 भी कर रहे हैं, 60 भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिपेंडिंग ऑन कितनी क्लियर टेक्नोलॉजी हमें उसके लिए चाहिए, कितना क्लियर आउटपुट चाहिए। So thank you for this session. Now I hand over to Angel. So we are just now done the theoretical part of it. Now you will as a group create a animation. The instruction for doing is you have to create a story. It could be a simple story. There should be a complete movement. We'll give you some materials. There will be two charts one chart should lay as a background like for you to do, and other charts you can use it for cutting, all that. We'll give all the set of materials, some colors, some all the materials will be given. But for this session we are not going to sit inside this room. We'll be using this whole corridor. So we'll finish our chai first, okay? Then as a team you will take 5-10 minutes to first discuss क्या करना है. So थोड़ा 2-3 चीज, because you will get only 1 hour time. So think that in 1 hour you should be able to complete, right? And you should distribute the work among your group members. So somebody may be good at drawing, somebody good at cutting. There should not be anyone left out. There are some people always who will silently stand and watch like a boss. वो बॉस का कुछ काम देना है, ठीक है? एक ही फोन में करना है. May usual mistakes I'm telling so that you avoid that. Number 1, they just cut and put it here and there. At the end when the story is going on, एक 2 piece cutting miss होता है. So in a group, make one person who will keep all the materials together. Last time one person was searching. Ultimately it was in his pocket only. Right? They lost 15 minutes searching for the materials. So थोड़ा ध्यान रखो, एक person का responsibility दे दो पूरा collect करने की. दूसरा चीज है, even though after telling, while going back, photo was taken in the camera instead of stop motion. You have to open stop motion studio. Inside stop motion studio app, you should take photo. So some groups take photo outside using normal camera. Then they will try where to put this photo. Then आपका already time खत्म होता है, ठीक है? So this is like a group work where you are going to sit down there outside. We'll be giving some newspapers. It's only less newspapers will be there, so you can put newspaper and sit. But we request one thing, since the flooring cannot be spoiled, please put newspaper when you make colors and all. When you use color marker and all, usually the floor is also painted. Then we have to get it clean. So please, the thing is like be careful while you're using water color and all that. Please put paper down and then work so that you can do. So what are you expected to do is to make a story. Minimum is 250 photographs. 250. 250 photos. Okay. It will not even come for 30-second animation. Okay. The thing is, whenever the simple tip is when you are making photograph, each click make it 4-5 times. So that the movement is, if you make one clip, one movement, second clip, another movement, it will look like jump like this. Okay, that smooth transition of going will not be there. So that's a kind of tip. 250, you may see, 250. But sometimes they take 500 pictures and all. Like it's not the bigger number, take like that. So you have to take the place in this L-shaped place. You can fix your group place. As soon as you are finished, come to the room, collect your material and you can start. Right?